will discuss about features and characteristic of statics. Earlier video also we have started the economic significance, यानी आपको significance of statics in economics. You know very well economics deal with different type of challenges and problem, and these problems and challenges are in India also, beta. And for this we need some strategy, tools and techniques to solve these problems, and statics provide that techniques. That's why सबसे पहले we will know about that what is the meaning of statics. Everyone know about the, जानते हैं ना सभी, what is the meaning of statics बेटा? Statics means numerical values, numerical terms of facts that is provided in statics. यानी information in terms of numbers. And when you provide the information and facts in numbers and numerical value, आप क्या कहते हैं, you are using the statics. यानी statics में meaning ही क्या होता है, quantitative information. For example, मैंने कहा आपका in India poverty जो ratio that is very high rate, but high rate is not present as mathematical data. But मैं कहता 22% people, यानी मैं कहता 20%, 15%. This ratio or percentage show a highly significant value, or this information provided by the statics. So that's why we need statics in economics. It's very important and necessary. For this one, we will know about what are the features and characteristic of statics. You know very well that मैंने आपसे कहा statics represent a quantity information, but every quantity information is not called statics. It means what is the conclusion? यानी all statics are data. Yes, we know कि आपका जो जितने भी statics है बेटा, it include data, but all data are not statics. मैंने आपसे कहा बेटा कि pocket allowance of a class, pocket allowance of a family, या फिर जो आपकी जो children है, that is statics. But I am having a one pen, यानी मेरे पास एक आपका sketch है बेटा आपका, I am having one blackboard. मैंने आपसे कहा कि जो मेरे पास आपका क्या बेटा, मेरे क्या बेटा, I have two hands. तो this is not statics. यानी this information is also in number. नंबर्स में है बेटा आपका, मैंने आपको स्केच के लिए यूज किया वन वर्ड यूज किया, हैंड्स के लिए टू वर्ड यूज किया, ब्लैक बोर्ड के लिए वन. तो दिस इज आल्सो ए स्टैटिक्स एंड डाटा, बट दिस डाटा इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मींस वी आर यूजिंग द स्टैटिक इन एग्रीगेट फैक्ट्स एंड नंबर्स. यानी हमने जब किसी चीज की परसेंटेज, एवरेज, यानी आप जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं दैट हैज कैन बी पॉसिबल ड्रॉ ए कंक्लूजन और कंपैरिजन, इट मींस स्टैटिक्स. यानी सभी डाटा, काउ हैज 4 लेग, यानी आपका ये क्या है आपका, इसमें हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं करते जिसका कोई कंक्लूजन निकाला जा सके. तो आपकी इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है जो नंबर में है, डाटा में है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में कब इंक्लूड करेंगे? आपसे मैंने कहा कि इन आवर स्कूल बेटा देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, बट दिस इज नॉट एनी. मैंने आपसे लेकिन कहा कि आपकी क्लास वाइज या फिर स्ट्रीम वाइज 400 आपकी आर्ट्स में, 300 इसमें. व्हेन यू मेक ए कंपैरिजन, व्हेन यू मेक ए कंक्लूजन, दैट मेक ए सेंस एंड दैट इंक्लूड इन स्टैटिक्स. तो फॉर दीज डेफिनेशंस एंड जो कैरेक्टरिस्टिक हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं बेटा, देयर आर मैनी characteristics and features are involved in statics. Today we will start the first characteristic, that is aggregate of facts. Earlier we have already discussed about that. A single number, यानी statics में कोई single जो number है बेटा, single number is not called statics. For statics we need a aggregate of facts. Average pocket money, आपने मैंने कहा आपका what is the ratio of poverty, that is अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो क्या, लिटरेसी रेट क्या है. दिस मेक ए सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी हम जो स्टडी करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, और व्हेन यू आर यूजिंग द स्टैटिकल टूल्स, तो इंफॉर्मेशन शुड बी इन एग्रीगेट फॉर्म. एग्रीगेट फॉर्म का मतलब दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ए कंपेयर्ड, कैन बी ए ड्रॉन कंक्लूजन, वो हमारा स्टैटिक्स है. यानी सिंगल नंबर इज नॉट कॉल्ड स्टैटिक्स. सेकेंड कहता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. ये भी एक आपकी मैंडेटरी स्टैटिक्स की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप स्टैटिक्स में देते हैं बेटा, दैट इज नॉट ए क्वालिटेटिव टर्म्स.
कोई छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, लंबा, आपका इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो आपकी स्टैटिक्स में इंक्लूड नहीं होती। मैंने कहा कि सचिन आपके शॉर्ट है, आपका इरफान आपका क्या लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम जब इस तरीके की कंपैरिजन बात करते हैं, हम किस में बात करते हैं? नंबर्स में, यानी 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 4 इंच। When you data represent like this manner, this is a statics, यानी numbers और data should be represent in numerical form, यानी it is must, यानी when you are using statics tools बेटा, every information, every data should be set in numerical form, because this is information, यानी this is the definition of statics. Statics refers to quantity information, not qualitative, यानी इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी वीडियो होती है आपकी, यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इन स्टैटिक्स वी प्रोवाइड, वी शेयर, वी कन्वर्ट द ऑल इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर सिस्टम। देन नेक्स्ट वन, यानी जो थर्ड आपकी बेटा वो क्या कहती है बेटा आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज का मतलब है जो स्टैटिक्स जो आपके जो रिजल्ट होते हैं दैट अफेक्ट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी रीजंस एंड कोजेस, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन कंक्लूजन जब आप निकालते हैं वो कंक्लूजन आपकी उससे रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं बेटा उससे अफेक्ट होती है। कैसे आपको मैं इसे एग्जांपल दे सकती हूँ बेटा, मैंने आपसे कहा कि इस साल हमारे जो प्राइस है बेटा उसमें 10% की इंक्रीमेंट हो गई, यानी प्राइस आर इंक्रीज्ड बाय 10%। तो ये जो 10% इंक्रीज हुए हैं इट इंक्लूड नॉट वन रीजन, मे बी सप्लाई शॉर्ट है, मे बी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी बेटा आपकी, या फिर हो सकता है क्या आपकी जो उसमें जो यूज़ किए गए हैं इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल उनकी जो कीमत बढ़ने के कारण हम उनकी जो आपकी जो प्राइस हम किसकी बात कर रहे हैं, मे बी क्रॉप्स की या वीट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो वाटर है या अदर जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ किए उनकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट होने की वजह से हमारे वीट के प्राइस में, यानी वन जो कंक्लूजन होता है स्टैटिक्स में इट अफेक्ट बाय मल्टीपल कॉज, यानी स्टैटिक्स जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा दैट कंक्लूजन अफेक्ट बाय मल्टीपल रीजन, मल्टीपल कॉजेज, तो ये कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। देन बेटा रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी आपको पता है कि हम जो डाटा है किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल में, और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट ए एक्यूरेट वैल्यू। अभी मैंने आपसे एक शॉर्ट एग्जांपल दिया था सचिन एंड इरफान वाला कि अगर मैं ये वर्ड यूज करती हूँ शॉर्ट एंड टो, ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा इट इज नॉट प्रोवाइड द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में बेटा अगर मान लो कोई 3 फीट हो और कोई आपका 6 फीट हो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और किसी में सिर्फ आपका 5 फुट 9 इंच और 5 फीट 10 इंच है उसमें भी हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है इट इज नॉट रिप्रेजेंट इन एक्यूरेट वैल्यू। फॉर एक्यूरेसी वी नीड नंबर्स, यानी हम इसमें बता सकते हैं कि बहुत कम डिफरेंस है, वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग, लेकिन शॉर्ट एंड टॉल आर नॉट डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डिफरेंस और कंपैरिजन, दैट्स व्हाई वी नीड नंबर, वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने जब डायरेक्ट उनकी हाइट्स किसमें बताते हैं, नंबर्स में बता रहे हैं, तो इट शो इन आपकी एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट डिफरेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स भी, कितना टॉल है कितना शॉर्ट है, ये किससे पता कर रहे हैं आपका विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। यानी स्टैटिक्स जो इंफॉर्मेशन देती है वो कैसी होती है आपकी, इट इज ए रीजनेबल एक्यूरेट, एक्यूरेसी इन्वॉल्विंग। देन नेक्स्ट वन बेटा आपका जो फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है आपका म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, यानी स्टैटिक्स की जो वैल्यू होती है बेटा इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा आप इसमें कंपैरिजन इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था आपकी 3 नेम दे दी, अमित है, ठीक है, मोहन है एंड श्याम है। अब इन तीनों में मैं इसकी हाइट ले लेती हूँ और इसका वेट ले लेते हैं 40 kg, ठीक है, और इसकी हम क्या है एक का वेट ले लिया, एक की हाइट ले ली, और एक क्या ले सकते हैं इसका फॉर एग्जांपल इसकी हम बात करते हैं किसी इसके लिए स्टडी से किसी भी अदर रिस्पेक्ट से, यानी कि क्या मैं किसी की हाइट और किसी का वेट को कंपैरिजन कर सकती हूँ, नो नॉट पॉसिबल। फॉर दिस वन वी नीड डाटा इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी दो वर्ड होते हैं आपका, कौन से वर्ड होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स यूनिट, यानी कि एक
और हेटेरो मतलब डिफरेंशिएशन, यानी इन स्टैटिक्स डाटा कैसा होना चाहिए बेटा आपकी म्यूचुअली रिलेटेड का मतलब है डाटा शुड बी इन सेम फॉर्म। व्हेन यू कंपेयर तो हम हाइट से हाइट को कंपैरिजन करेंगे, वेट को वेट से कंपैरिजन करेंगे, हम क्या उसकी जो स्ट्रेंथ है बेटा स्ट्रेंथ को उसकी स्ट्रेंथ से कंपैरिजन करेंगे। अब ये नहीं किसी एक की हाइट ले रहे हैं किसी एक का वेट है, दैट इज नॉट पॉसिबल टू कंपैरिजन। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिक्स जब स्टडी करती है टूल्स यूज करती है दैट डाटा किसमें सेट होता है, डाटा इज कंपेयर इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन फॉर्म, इट मींस म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल फॉर्म। यानी डाटा हमेशा किसमें होता है बेटा होमोजेनियस फॉर्म में होता है, नॉट हेटेरोजेनियस में। यानी डिफरेंशिएशन मैनर में वी कलेक्ट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस, यानी आपका किसमें डाटा कलेक्ट करते हैं बेटा इन द यानी सेम मैनर। यानी हम किसी की इनकम ले रहे हैं तो एक की इनकम दूसरे के एक्सपेंडिचर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, किसी एक आपके बीपीएल फैमिली को एपीएल फैमिली, यानी व्हेन यू कंपेयर व्हेन यू ड्रॉ इन्वेस्टिगेशन तो उसके लिए वी नीड डाटा इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस। यानी आपका जो डाटा कैसा होना चाहिए म्यूचुअली आपका रिलेटेड एंड कंपेरेबल। देन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी आप स्टैटिक्स में तो स्टैटिक्स का मतलब होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्टैटिक्स हम कैसे करते हैं। देखिए सिंपल एक मैं एग्जांपल और लेके आपको बताती हूँ कि मुझे आपकी कॉलोनी के अंदर देखना है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम हमें निकालना है। मान लो एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में ही के आसपास के गांव का एग्जांपल है, बगला के अंदर एवरेज इनकम कितनी है, कैसे पता करेंगे बेटा, आप एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आप एक वहां पर क्या स्टडी करेंगे और वो स्टडी हमारी कैसी होगी स्टैटिकल स्टडी होगी। यानी आप फैमिलीज की इनकम को निकाल के मान लो अगर एग्जांपल के लिए वहां पे 100 फैमिली है तो 100 फैमिलीज की इनकम से आप उनकी पूछ के उससे उनसे क्या निकालेंगे बेटा एवरेजेस पुट आउट करेंगे कि उनकी एवरेज इनकम कितनी है। हो सकता है मे बी एक पर्सन की 10,000 भी हो और मे बी हो सकता है एक पर्सन की 1,000 भी हो, बट यू नीड टू ड्रॉ क्या निकालना था एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का मतलब है सभी की टोटल इनकम करके नंबर ऑफ फैमिली से डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा एवरेज इनकम। और ये जो आपकी जो स्टडी है ये आपके जो मेथड्स है बेटा ये किसमें इंक्लूड करते हैं स्टैटिक्स के अंदर। तो ये कहता है बेटा आपका जो हम सबसे पहले बेटा व्हेन यू आई स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन तो मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, आई वांट टू नो अबाउट द एवरेज इनकम। यानी एवरी इन्वेस्टिगेशन एवरी स्टैटिक्स वर्क वी नीड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी व्हेन यू स्टार्ट वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द ऑब्जेक्टिव व्हाट आर इज गोइंग ऑन इन फ्यूचर। यानी अगर आपको ये नहीं पता करने क्या जा रहे हैं तो स्टैटिक्स जो स्टडी होती है दैट्स फेल। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी स्टैटिक्स इन्वॉल्व प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अगर मुझे यहाँ पे मोबाइल की सेल की परसेंटेज निकालनी है, मोबाइल के रेट्स के परसेंटेज इंक्रीज हुए कि डिक्रीज रेट के बारे में जानना है तो सबसे पहले बेटा मैं स्टडी करने से पहले ये डिसाइड करती हूँ व्हाट डू यू वांट टू बी। यानी मुझे जानना क्या है स्टडी से उसे बोलते हैं बेटा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी बिफोर स्टार्टिंग स्टडी बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन वी नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्ट प्री डिटरमाइंड करना विदाउट स्टार्टिंग द वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द ऑब्जेक्टिव देन एस्टिमेटेड बेटा। आप मैंने आपको एक गांव का यानी एक विलेज का एग्जांपल दिया है, बट व्हेन इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वास्ट यानी जब एरिया बड़ा होता है बेटा तो हम बहुत सारी ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स लेते हैं जिसमें जो डाटा होता है वो एक्चुअल डाटा नहीं होता, वो डाटा कैसा होता है बेटा एस्टिमेटेड एंड स्टैटिक्स इन्वॉल्व। कैसे फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल हम ये बात करें मैंने आपसे कहा 22% जो आपकी जो पॉपुलेशन है इट कम्स अंडर द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको लगता है कि हम each and every house has to be conducted in study area, not possible. For this one we take the technique sample techniques, जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स है वी नीड टू टेक एग्जाम। हमने जैसे सैम्पल टेक्निक्स हम आगे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स में वी स्टडी ओनली फ्यू डाटा और ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू डाटा वी ड्रॉ ए कंक्लूजन फॉर होल पॉपुलेशन। और इसलिए इसका मतलब है जो मैंने दूसरा पूरी पॉपुलेशन के लिए जो आपने कंक्लूजन बनाया था वो कैसे बनाया है एस्टिमेटेड है, दैट इज नॉट एक्चुअल डाटा, दैट इज ए एस्टिमेटेड डाटा। यानी हमें एक्चुअल नहीं पता, ओनली दैट इज एस्टिमेटेड। में क्या होता है मतलब कि वी अज्यूम दैट जितना मैंने 100% जो रिजल्ट दे रहे हैं वही रिजल्ट 1000 भी देंगे, तो उसे कहते हैं एस्टिमेटेड। देन नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट बेटा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिकल मैनर्स। अगर हम क्योंकि मैंने कहा जो स्टडी है अगर सिस्टमैटिकल मैनर में हो तो वी कांट कंक्लूड कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते। यानी डाटा अगर बेटा आपका हैप्पहज़ार्ड है इट मींस
अगर हमारा केस अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, आपका सिस्टमेटिकल मैनर में है, तो उसको हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कभी भी कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं करते। यानी डाटा शुड बी इन फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिकल का मतलब है ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, एवरेज निकाली हुई है, आपने मीन बताया हुआ है, आपने कोई टेबल यूज की हुई है या फिर आपने कोई डायग्राम यूज किया हुआ है। when you collect of data, when you study conducted data, it should be in a systematical manner. Systematical मतलब है you follow a some typical rules and regulation when you study. और with this one, these are the features and characteristic which include in statics. यानी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। स्टैटिक का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट गिव सम, हमें क्या देता है, हेल्प टू डील विद इकोनॉमिक इश्यूज। अब इसके बाद मैं बार बार आपको काफी सारे वर्ड ऐसे यूज किए, स्टैटिक्स टूल्स एंड टेक्निक। तो व्हाट आर द स्टैटिक्स टूल्स एंड टेक्निक व्हिच आर यूजिंग इन स्टैटिक्स? तो अब इसे नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट सम स्टैटिक्स टूल्स एंड स्टेजेस इन स्टैटिक्स। ओके।